सुबह कभी तो आएगी. Everybody agrees on the question of Swiss banks. We all know there's money there. Why don't we work together to get that money back? अगर हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभाला होता, निभाया होता, तो विदेशी बैंकों में धन जमा न होता दोस्तों. और कुछ लोग होंगे जो रास्ता भी दिखाते होंगे कैसे लाया जाए. Only 3 to 4% of Indians pay income tax. The 97% not paying a tax creates an extra burden on those 3%. So, it is better to try and increase the tax base rather than implementing more taxes on the people who are already paying. All the states have not agreed on GST. Government of India should have taken all the states in confidence. GST did not get implemented. So that, to my mind, would have been a forward-looking legislation, bringing much more efficiency in the tax collection system. The import duties for products being manufactured from India are very high, due to which the cost competitiveness vis-a-vis our competing countries, we are lagging. The accountability in the system, both for the taxpayer and the tax department, should increase so that the trust is built in more transparent manner. Presently, India has got this direct double taxation avoidance agreement with Mauritius and various other countries. So if India government does away with the direct double taxation avoidance agreement, in that case, what is going to happen is we can contain the money within the country, and at the same time we can also tax on the money that is being drained out of the country. All of us have heard about the controversies regarding Vodafone and others, and they have had to pay through their nose because we did not tell them this is what your tax liability would be in time. And we should announce the tax policies for foreign companies very clearly and very unequivocally, so that later on there is no trouble. Taxation laws need to be clarified so that the industry knows that the country is willing to accept investment. So the foreign investors will also realize, okay, the tax structure is very clean here, so let's come here, make our investments, that will create jobs, and I think that should be the main focus of the future Prime Minister. विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे. नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में. आज हमारे फोकस का विषय है टैक्सेशन में सुधार. कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा टैक्स सिस्टम बन गया है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए जिससे हमारी इकोनॉमी में एक ग्रोथ का एक इम्पेटस और इम्पल्स आ सके. ये जो एजेंडा हमारे लिए तैयार किया है एक विशेषज्ञों के ग्रुप ने करा है. हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री BM सिंह, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. मुकेश भूटानी, BMR लीगल के मैनेजिंग पार्टनर और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट. मिस अनुराधा दत्त, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने बहुचर्चित वोडाफोन केस भी लड़ा था. इनके अलावा मुंबई में हमारे साथ हैं केतन दलाल, जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के जॉइंट टैक्स लीडर हैं. और इन सबके साथ हैं हमारे धीरज नैयर, जो नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO हैं और इस सारे प्रोजेक्ट के हमारे कर्ता धर्ता हैं. ऑडियंस भी है हमारे साथ स्टूडियो में. इनमें से कई लोग तो हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट और ट्विटर पे जाके अपने सुझाव हमको दिए हैं. आज हमारे साथ ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे. और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें अगले शोज में, तो ट्विटर पे जाइए, हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, अपने सुझाव दीजिए और हम आपको भी आमंत्रित करेंगे अगले शोज में. फाइनली मैं ये आपको बता दूं कि आज का जो एजेंडा है और 13 और पॉलिसी एरियाज जिसमें हमने सुझाव एकत्रित किए हैं, वो हम जून में जब नए प्रधानमंत्री ऑफिस में आएंगे उनको जाके देंगे. तो पहले हमारे ये जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट इस आने वाले बजट के साथ रिलेटेड हैं, क्योंकि ये चारों एक बजट में ही प्रधानमंत्री और उनके जो वित्त मंत्री हैं इसका डिसीजन ले सकते हैं. पहला पॉइंट तो है जो कि इनकम टैक्स का है, सब इंडिविजुअल इनकम टैक्स का है. हम कह रहे हैं उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दीजिए, 2 लाख से 3 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दीजिए, और जो मैक्सिमम टैक्स रेट है उसको 25% कर दीजिए 30 से. लेकिन जब आप ये करते हैं तो सारी एग्जेम्पशंस को हटा दीजिए, और जिससे कि आसान हो जाए लोगों के लिए टैक्स फाइल करना और टैक्स कलेक्शन का.
कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कंपनीज टैक्स देती हैं उसमें हम कह रहे हैं 15% कर दीजिए उन कंपनीज पे जिनका मुनाफा 50 करोड़ से कम है साल भर, और उसके ऊपर जो मुनाफा कमाती है उनको 25% कम दीजिए। तो ये काफी कम है आज के टैक्स प्रणाली से, लेकिन हम उसके साथ कह रहे हैं कि सारी एग्जेम्पशंस हटा दीजिए, मैट को अबॉलिश कर दीजिए और इसको भी सरल कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3 हमारा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे 5% का एक रिबेट दीजिए, और ये सारी चीजें जो हैं आप एक्सपोर्ट वाला तो आप 20 साल तक के लिए स्टेबल डिक्लेयर कर दीजिए, बाकी रेट्स को आप 5 साल के लिए स्टेबल कर दीजिए, तो लोगों को पता है कि उनको कितना टैक्स लगेगा। और चौथा हमारा पॉइंट है कि जो वित्त मंत्री जो सरचार्जेस, जो स्पेशल लेवीज वगैरह लगाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे ना लगा के इनडायरेक्ट टैक्स पे लगाएं। अगर जैसे कि डीजल की गाड़ी है उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगा दीजिए, डायरेक्ट टैक्सेस पे मत लगाइए। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। तो पहले मैं मुंबई से शुरू करता हूं। केतन, आप बताएं ये 4 पॉइंट में कैसा आसानी से कर पाएंगे वित्त मंत्री या नहीं? या आसानी से कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो 2 लाख से 3 लाख एग्जेम्पशन इंक्रीज करने की बात है तो मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन अगर देखने जाए तो 2 लाख की सब्सटेंशियली वैल्यू कम हो गई है। लेकिन एक बात है, इसमें जो एग्जेम्पशन पूरे निकालने की, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, उसमें निकालने की बात करें, मैं फुल्ली सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप अगर देखिए हाउसिंग के लिए सिर्फ 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, और आज खास करके मेट्रो सिटीज में 80% ऑफ यंगस्टर्स के माइंड में जो ये हाउसिंग का प्रॉब्लम है और हाउसिंग की प्राइसेस जो बढ़ गई उसके लिए इंटरेस्ट डिडक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहिए। सो ये एक बात है जी। जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात रही उसमें मेरे ख्याल से 15% करना मेरे ख्याल से बहुत ही डिफिकल्ट है, शायद 30 से 25 कर रहे हैं, इवन 25 इज अ गुड रेट। एग्जेम्पशंस तो एज इट इज काफी कुछ निकल गए हैं, एसी रेट छोड़ के ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए कि जो टैक्स लगाते हैं, काफी कोई आर्टिफिशियल डिसअलाउंस करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया मैट रिमूव करना चाहिए, और कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेज है और ग्रुप कंसोलिडेशन है, वो सब करना चाहिए, जिससे जो सब्सिडियरी में लॉस हो और होल्डिंग कंपनी में प्रॉफिट हो वो साथ को जोड़ना चाहिए। तो ये काफी डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड और अप्रोच जो कंटेम्पररी है, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट के से जुड़ा हुआ है, उसे करना चाहिए, और एक्सपोर्ट्स के लिए डेफिनेटली इंसेंटिव करना चाहिए। अनुराधा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ कि आप इंक्रीज करिए जो लोएस्ट टैक्स स्लैब है जी, पर मैं एग्री नहीं करती कि एग्जेम्पशंस निकल जानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला सबसे पहले हमारे को फोकस ग्रोथ पे करना चाहिए, और ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड। और उसके लिए आप जैसे 91 में प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सर्टन एरिया जैसे सिलवासा था, एकदम उस पे एम्फेसिस दीजिए, वहां आइए आपको ये सब एग्जेम्पशन मिलेंगी, वैसा ही कुछ ऐसे सोच के अब करना चाहिए। तो मुकेश आप बताएं। एग्जेम्पशंस पे आपको ये सोचना चाहिए कि 3-4 चीजें जहाँ पे एग्जेम्पशंस लेते हैं लोग, एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होता है, एक LIC कंट्रीब्यूशन होता है, और एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होती है। ये तीनों कंट्रीब्यूशंस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ये गवर्नमेंट डिप्लॉय भी करती है। तो अगर आप ये सारी एग्जेम्पशंस ले लेंगे तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग्स नहीं होगी, और उसका पता नहीं मुझे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर आप ये एग्जेम्पशंस लेना भी चाहते हैं तो ऐसे कीजिए कि जिनकी इनकम 10 लाख या 15 लाख से ज्यादा है उनका एग्जेम्पशंस निकाल दीजिए, लेकिन जो 10 लाख के नीचे उनको एग्जेम्पशंस रख दीजिए जी। आपकी दूसरी बात कॉर्पोरेट टैक्स पर थी। कॉर्पोरेट टैक्स पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का इम्पैक्ट देख नहीं रहे हैं जी। 12% था जब इंट्रोड्यूस किया था, अब ऑलमोस्ट 20% हो गया है जी। तो ये बिल्कुल अनफेयर बात है कि आप पहले कॉर्पोरेट टैक्स लेवी करते हैं जी, फिर जब आप वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 50% से ज्यादा टैक्स हो जाता है। हाँ जी, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट्स की बात अच्छी है, लेकिन आपको एम्फसाइज मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा जी, क्योंकि ट्रेडेड एक्सपोर्ट्स पर आप रिबेट नहीं ले सकते हैं जी। इससे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी कंट्री में, और उससे इंसेंटिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग के आप चैलेंजेस तो देख रहे हैं कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ गई है। और लास्ट बात आपकी इनडायरेक्ट टैक्स सरचार्ज की रही। लग्जरी गुड्स पर अगर आप लेना चाहें सरचार्ज तो ठीक है, लेकिन जो आपका रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहेगा GST में, उस पर आप सरचार्ज। तो हाँ, GST का तो हम पूरा अभी बात करेंगे। सिंह साहब, आपने सबका सुना, आपने तो ये प्रणाली चलाई है और सालों साल आपने चलाई। इसमें से कितने पॉइंट जैसे एग्जेम्पशंस पे हमारे से सहमत नहीं है हमारे एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं एग्जेम्पशन होना चाहिए, और बाकी रेट भी हमने कुछ ज्यादा कम बताया है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर रेट कम होता है तो कलेक्शन ज्यादा होती है, कंप्लायंस ज्यादा होती है। लेकिन
सहमत ये है लोग कि रेट भी कम कीजिए लेकिन इतना कम मत कीजिए, तो आप बताएं। पर मैं ये सहमत नहीं कि ये स्लैब बढ़ा देना चाहिए, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमको टैक्स बेस चाहिए, हमको इसको बढ़ाना है, इसको कम नहीं करना। इस कंट्री में भी हमारे डेटा बेसिस को हमने इंक्रीज करना है, हमने ये कम करने से हमको फ़ायदा नहीं होगा। ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात कर रहे थे, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, मेरे ख्याल में और नहीं देखा, जहाँ पर डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट, जो जिसको डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट इनकम है जी। तो इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो होना चाहिए। ये और बात है कि 18% नहीं 12% हो जाए, 15% हो जाए, ये जो रेसिपेंट है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कि उसको कोई डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं दे पर रहा। कंपनी पे बहुत ज्यादा हो जाता है, 50। पर कंपनी उतना वो उधर से लो या इधर से लो, बात तो वही आ जाती है ना। बहुत भारी डिबेट। धीरज, अब आप देखिए ये एग्जेम्पशंस पे मत यही है कि एग्जेम्पशंस का एक फायदा होता है। हमने कहा है कि एग्जेम्पशंस हटा दीजिए, रेट कम कर दीजिए। लेकिन आई थिंक अच्छा सुझाव था कि जो 10 लाख के ऊपर के की आमदनी है उन पे नहीं हटा दीजिए, जो स्मॉलर जो मिडिल क्लास है फिर उससे उन पे इफेक्ट नहीं होगा, उनको एग्जेम्पशंस मिलेंगे जो प्रोविडेंट फंड के हैं या इंश्योरेंस के हैं। और जैसा पैनलिस्ट ने कहा कि इनके फायदे भी हैं, देश के लिए भी फायदे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उतना तक हम मान सकते हैं। तो हम उसको अमेंड करते हैं, हम अमेंड कर देते हैं। ये जो सरचार्ज की बात है, हर बात पे सरचार्ज लग जाता है, हमें पता नहीं किस पे खर्च होता है, लग जाता है, इसे नहीं लगाना चाहिए। हम इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोल रहे हैं कि या तो लग्जरी गुड पे लगेगा, अगर आप एसेंशियल पे लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि सब लोग देते हैं उसको, तो सरकार के लिए डिसइंसेंटिव है सरचार्ज लगाने का। तो अभी कोई सुझाव, कोई प्रश्न? जी हाँ, पूछें। मेरा प्रश्न मिस्टर सिंह के लिए है कि जैसे अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड टैक्स की 3 लाख या 5 लाख की जाती है और सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करके जो लोग टैक्स नहीं देते हैं लेकिन वो टैक्स देना चाहिए उनको उस दायरे में लाया जाए, तो ये बेसिक एग्जम्पशंस भी मिल जाएगी, एक रिलीफ मिल जाएगी टैक्स पेयर्स को जो कम सैलरी है या कम इनकम वाले हैं। और दूसरा, और लोग भी ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सूचना तकनीकी के कारण वो पकड़े जाएंगे या उनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी रिसेंट जो अंतरिम बजट आया उसमें हमारे वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी एसवीबी पे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे तो हमने लास्ट बजट में हमने एचएनआई पे सरचार्ज लगाया था 5%, जो इस साल भी कंटिन्यू हुआ। तो एक तरफ तुम डायरेक्ट टैक्स में बोल रहे हैं कि हम एचएनआई से सरचार्ज लेंगे, और सेकंड में इनडायरेक्ट टैक्स में बोल रहे हैं एसवीबी पे हम जो एक्साइज ड्यूटी 30% से 24% देंगे। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हम किससे टैक्स ज्यादा लेना चाहते हैं, एचएनआई ज्यादा लेना चाहते हैं कि नहीं। बिल्कुल सवाल ठीक है आपका। और कौन थे यहाँ पे? हाँ, आपने जो सीडीटी के बारे में बोला कि एक इधर से दो और उधर से लो, सर कहीं ना कहीं अगर हम कंपनीज पे बर्डन डालते हैं तो कंपनीज कस्टमर्स पे बर्डन डालती है, तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर्स को सफर करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है। तो सर इसके रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए। जी सिंह साहब, आप थोड़ा अगर जवाब दे दें। इनका सवाल है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बोल रहे हैं ना, तो वो एक बात ऐसे है कि हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं और सब कोई टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, वो मालूम करना बड़ा मुश्किल है। एक ही जगह से जैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, कंपनी काट के दे देती है एट अ लोअर रेट, तो एफिशिएंट ईज ऑफ कलेक्शन तो है, लेकिन फेयरनेस कितनी है, वो फेयरनेस एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम में। ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। राइट। तो अब मैं पॉइंट नंबर 5 पे आना चाहता हूं, और वो है एग्रीकल्चर को टैक्स कीजिए। बहुत ही पॉलिटिकली मुश्किल है, कागज में लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक मानसिकता इस देश की है कि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत हाई थ्रेशोल्ड रखिए, आप भले कहिए कि 20 लाख की इनकम के ऊपर या 25 लाख की इनकम के ऊपर हम लगाएंगे, लेकिन शुरुआत कीजिए। अगर आप शुरुआत करेंगे तो फिर धीरे धीरे टैक्स नेट में लोग आएंगे। जो गरीब फार्मर है, जो लैंडलेस लेबरर है, वो तो बिल्कुल उसका टैक्स करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन रिच फार्मर को शुरू कीजिए। अनुराधा जी, आप बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है? नहीं, आइडिया तो बहुत अच्छा है जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जो अभी तक हम सर्वेस देख रहे हैं आने वाली इलेक्शंस के, ऐसा लग नहीं रहा किसी पार्टी को मिलेगा। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी जाता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की भी और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो चुन के आते हैं, वो मोस्टली रूरल एरिया से हैं। वो कभी भी नहीं मानेंगे कि ये इस क्लास को आप अब टैक्स करिए, चाहे आप उसको बहुत हाई थ्रेशोल्ड भी रखिए। इसलिए जब तक ये सब या तो बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट आए, या आप पार्लियामेंट में इलेक्शन का जो है वो बेसिस चेंज करिए कि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है
तो आप ज्यादा अर्बन सीट्स करें। जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होगा, आई डोंट थिंक ये गवर्नमेंट कर। सो धीरज, मैं सीधा आपके पास आता हूं, क्योंकि ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका लगता है कि ये जब तक कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज ना आए, अर्बनाइजेशन रेट जैसे कंट्री का, जैसे आज अमेरिका का अर्बनाइजेशन रेट 60% है, 70% है, चाइना का 50% से ऊपर हो गया, हम अभी भी 30-35% पे। जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हमारा अर्बनाइजेशन रेट शायद 60% पहुंचे, 30% पे भी, पर आपकी जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर था वो तो उससे भी 10% पे था। तो ये लगता है, तो आप बताएं। हाँ, कठिनाई तो है, बिल्कुल कठिनाई है कृषि के आमदनी है उसको टैक्स करने की, लेकिन जैसा आपने कहा कि ज्यादा अर्बनाइज हो रहा है देश। अब काफी जगह जो पहले गांव माने जाते थे अब छोटे से शहर बन गए हैं, छोटे टाउन्स बन गए हैं, तो ये धीरे धीरे बदलाव आएगा। और जैसे हमने कहा कि ये प्रोफेशन के बेसिस पे नहीं होगा टैक्स, इनकम के बेसिस पे होगा। तो अगर आप इससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो अगर टीचर दे रहा है टैक्स, तो आप फार्मर हैं तो क्यों नहीं देंगे टैक्स? अगर आप टीचर से कहीं ज्यादा कह रहे हैं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है, वो बदल, लेकिन ये वैसा रिकमेंडेशन नहीं है जो पहले बजट में होगा। इसके लिए काफी पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी नेतृत्व की बात है। एक पोल में लेना चाहता हूं, 2 सवाल हैं इसमें। एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए, हाँ या ना? पहला सवाल, होना चाहिए, क्योंकि आप तो अर्बन ऑडियंस हैं, तो आपको तो फर्क पड़ता नहीं। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री कर पाएंगे? सो ये जो है कथनी और करनी में, और जो चाहे और जो होगा उसमें बहुत फर्क है। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, अपने सुझाव दीजिए, और छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस आइए। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हम अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर की तरफ फोकस है हमारा, कि किस तरह से उसको इंप्रूव किया जा सके, कॉम्प्लिकेशन कम करी जा सके। अभी हमने जो पहले सेगमेंट में देखा था वो था कि बजट में किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं, और हमने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया एग्रीकल्चर टैक्सेस का भी डिस्कस किया था। अब हम आ रहे हैं 2 ऐसे मुद्दों पे जिन पे बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और जो पहला मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वो तो पिछले 3-4 साल से बहुत ही सुर्खियों में रहा है, और वो है कि हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस कर दिए हैं टैक्स लॉज में। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन में एक जजमेंट दी, लेकिन सरकार उस जजमेंट से सहमत नहीं थी, तो सरकार ने एक लॉ पास कर दिया, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले सालों से पास किया, पिछले कई सालों से पास किया। तो उससे जो था, पूरी विश्व में भारत की तरफ काफी लोगों को नर्वसनेस होने लगी कि क्या इस कंट्री के लॉज स्टेबल हैं, अगर स्टेबल नहीं है तो क्या हम इस कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो एक वोडाफोन टैक्स केस से बहुत क्षति हुई है भारत को, और उसके साथ बाकी कई केस भी जुड़ गए हैं जो फेमस हो गए हैं, जैसे शेल का है, नोकिया का है, IBM का है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री को और उनके वित्त मंत्री को एक प्लेज लेना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि हम अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स चेंजेस कभी नहीं करेंगे अनलेस बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी हो। तो अनुराधा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वोडाफोन का केस भी लड़ा था। तो पूरा आप तो इसको पूरी तरह से समझते हैं इसको, तो इसको किस तरह से अब इंश्योर करें कि ये दोबारा ना हो? मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगी, पॉलिटिकल क्लास कहूंगी जी। पॉलिटिशियंस को, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको ये ठान लेना चाहिए, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो है किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में ये किया नहीं जाता। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में एक बार कभी हुआ है, पर कभी भी एपेक्स कोर्ट का डिसीजन को सुपरसीड नहीं किया गया जी। क्योंकि अनलेस आपकी टैक्स पॉलिसी में एक सर्टेनिटी हो, तो बाहर के लोग जो हैं वो बड़े शक से आपको देखते हैं। तो मुकेश, ये तो लोग मानते हैं कि इससे बहुत भारत को क्षति हुई है। हम कह रहे हैं कि आप एक लॉ इनैक्ट करिए कि आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं करेंगे, और हम कह रहे हैं कि ये जो मार्की केसेस बन गए हैं, विजिबल केसेस बन गए हैं, इनको आप आके 3 या 6 महीने में सेटल करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि सिग्नल जाए। तो वो कैसे सेटल होगा? ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल होने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि 2008 के बाद जब ग्लोबल स्लोडाउन हुआ, 9 में, 10 में, 11 में FDI आया, 12 के बाद आप FDI की फिगर्स देख लीजिए जी। जो
ऑलरेडी जो कंपनीज यहाँ हैं उन लोगों ने भी अगर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट करना है तो सोच रहे हैं उनकी बोर्ड मीटिंग्स में बैठ के कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि सर्टनिटी की बात अनुराधा जी कह रही थी। तो ये अगर सोच में आ जाए तो इसके बाद एक्ट करना कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है। और इसके लिए एक्ट करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि आगे चल के रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करें और किस हालात में हम वो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करें। ये तो वोडाफोन की बात रही। दूसरे जो केसेस आ रहे हैं उनमें तो कोई अमेंडमेंट्स हुआ नहीं है। उनमें यही बात है कि लॉ आपके ड्राफ्टिंग सही नहीं है, या आप बिल्कुल ऑफिसर्स को इतने अनरीजनेबल टारगेट्स देते हैं कि वो ऑफिसर्स डिमांड रेज करते हैं। हमारी जो सारी बजट एक्सरसाइज कैश बेसिस पे चलती है वो बिल्कुल गलत है। हम फिस्कल डेफिसिट अचीव करने के लिए ये सारी डिमांड्स खड़ी कर देते हैं। केतन, आपका इसमें सुझाव कि ये 3 या 6 महीने में हम कह रहे हैं इसको सेटल कीजिए, कैसे भी कीजिए, जहां भी जजमेंट जाता है, लेकिन ये जो नया प्रधानमंत्री आएगा वो इस लेगेसी के साथ नहीं आएगा, तो ये हवा जो है इसको हटा दीजिए। नहीं, सो एब्सोल्युटली ये बात सही है कि ये फास्ट ट्रैक में करना चाहिए। सिर्फ यही केस को नहीं, काफी कोई जो आजकल न्यूज़पेपर्स में नहीं है उसमें काफी कोई दूसरे भी केसेस है, और हर एक चीज पे एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए। सो दैट इज नंबर 1। और दूसरा जो मुकेश ने बताया, जो एफडीआई पे इम्पैक्ट है, एक सर्वे किया गया था कि कितने ग्लोबल सीईओज का सर्वे था कि आपको कौन से कंट्री इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो लास्ट ईयर 31% ने चाइना बोला था, इस ईयर 33% ने बोला, और इंडिया का रैंकिंग नंबर 2 या 3 से जो 2-3 साल पहले थे उसमें नंबर 6 पे पहुंच गया है। और ओनली 7% आर सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको आज वेस्टर्न इकोनॉमिक जो डेवलप हुई है उसमें भी वापस अपॉर्चुनिटीज आ गए। जैसे कि अमेरिका में 30% सीईओज आर सेइंग वी विल इन्वेस्ट देयर। सो आवर पोजीशन, अपनी जो पोजीशन है वो काफी वीक हो गई है, एंड उसके लिए भी ये जो फास्ट ट्रैकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब सिंह साहब, एंड एज आई सेड, ये डिस्प्यूट जी, मैं सिंह साहब के पास आऊंगा। आपने सबको सुना, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लोगों को, जिससे क्षति हुई है, भारत को क्षति हुई है। इसकी सेटलमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। एक बार इन्होंने जब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया है जी, और कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसा प्लेज भी नहीं ले सकता, कोई ऐसा लॉ भी पास करे तो उस लॉ को भी अमेंड कर सकते हैं बाद में। जी जी, यू सी दैट उसका कोई फायदा नहीं है। बस यही है, करना नहीं चाहिए। ऐसा कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं पास करना चाहिए जिससे जो ऑलरेडी केस डिसाइडेड है उसका एडिशनल टैक्स रेज हो जाए। जी, तो मैं ऑडियंस के पास आऊंगा, आप अपने सवाल दीजिए, उसके बाद धीरज जो है जवाब देंगे आपके सवाल का। तो हाँ, आपके पास जैसे कि यहाँ पे अभी डिस्कशन हुआ कि हम अगर 3 या 6 महीने में ये सारे केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, स्पेशली जैसे वोडाफोन या ऐसे और भी केसेस हैं, वो सॉल्व कर लें तो हमारे आगे के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है नए प्रधानमंत्री के लिए। परंतु उसके बाद भी, जैसा हम आज तक भी देखते आ रहे हैं, जो लो प्रोफाइल केसेस हैं, जो जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनसे वो तब भी इन 3 से 6 महीने में कवर शायद ना हो। तो उनका क्या हो वो भी अभी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाई प्रोफाइल केसेस अगर सेटल हो जाएं तो फिर बाकी केसेस सेटल होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा मीडिया के ग्लेयर में है, इनको सेटल करना ज्यादा मुश्किल होगा। हम लोग जानते हैं इनके बारे में, सब लोग जानते हैं, एक्टिविस्ट लोग जानते हैं, जो भी करेंगे उसमें ज्यादा कठिन होता है। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं ये केस तो है, लेकिन आगे जाके ऐसा सिचुएशन ना पैदा हो, क्योंकि अब ये केस तो हो गए, जो क्षति पहुंचनी थी पहुंच गई, अब आगे ऐसा ना हो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक प्लेज लिया जाए कि बारिंग बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बिल्कुल नहीं होगा। जी जी, तो ये तो क्लियर मैंडेट है अगले प्रधानमंत्री के लिए। अब हम आते हैं जीएसटी पे। ये एक ऐसा इशू है जिसको हम अपने पिछले शो में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप बात करें वो कहता है कि होना चाहिए। ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं होना चाहिए, ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर कहते हैं होना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ये हो नहीं रहा है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है सारी साइड्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि अगर आपको लगता है कि आपका रेवेन्यू इससे लॉस होगा स्टेट्स को, कि हम गारंटी करने को तैयार हैं कि आपका रेवेन्यू हम गारंटी करते हैं, और अगर 2-3 ऐसे आइटम हैं जैसे लिकर है या बाकी चीजें जिसको आप अभी भी टैक्स करना चाहते हैं, तो इंटरिम में अगले 2-3 साल में आप करते रहिए, हम आइडियल पोजीशन पे मूव करेंगे 3 या 4 साल पर। तो ये हमारा सुझाव है कि इसको शुरू तो कीजिए, अटके क्यों हैं हम? मुकेश, देखिए, ये एक स्टेट गवर्नमेंट्स का डर रहा है, और ये डर 2003 से रहा है। जब हम सेल्स टैक्स को VAT बना रहे थे, तब हरियाणा गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था कि हम सेल्स टैक्स से VAT पे जाएंगे। उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मांगी थी, लेकिन अगर आप उसकी कलेक्शंस देखेंगे, क्योंकि 2006-2007 तक सारी स्टेट्स
सेल्स टैक्स से वीएटी पे आ गए, कोई स्टेट का डेफिसिट हुआ नहीं। मेरे को ध्यान है, हरियाणा ने, फिर दिल्ली ने करा था, फिर यूपी ने करा, फिर सबने करा। तो ये अभी स्टेट्स को थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि उनका जो एक्सपीरियंस वीएटी पे रहा था, जीएसटी पे भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जीएसटी से आप 3-4 चीजें होने वाली है। एक तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिन पे टैक्स नहीं लग रहा है, वो आ जाएंगे टैक्स नेट में। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स का डर है वो सही नहीं है। दूसरी बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कमिटमेंट कि कॉम्पनसेशन फॉर्मूला के बेसिस पर हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को बेट लेना चाहिए। आई थिंक जीएसटी में सबसे बड़ी बात ये रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को शक हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी जो पावर्स हैं, ऑटोनॉमी है, वो छिन जाएगी। सो उसके कारण वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये सब पार्टीज को साथ में आना चाहिए, नो मैटर विच गवर्नमेंट कम्स टू पावर, और उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो धीरज, कंट्री कंसिडरेशन, पॉलिटिकल डील मेकिंग, ये तो डेमोक्रेसी में बहुत लेजिटिमेट चीज होती है। बिल्कुल, इसमें नेतृत्व की भी बात है और थोड़ा बड़प्पन दिखाने की भी बात है कि जो भी प्रधानमंत्री हो वो अपनी पार्टी के लिए या अपने लिए क्रेडिट ना क्लेम करें सारा कि मैंने ये किया है। उससे प्रॉब्लम होता है, फिर विपक्ष की पार्टियां बोलती है अरे हम भी क्रेडिट चाहते हैं। तो सबको क्रेडिट दीजिए इसमें, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कहा 1-2% जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी इससे। और जो लॉस ऑफ पावर का सिचुएशन है कि स्टेट्स के अल्टीमेटली क्या कंसर्न है कि उनके पास रेवेन्यू हो, अपनी जो चीजें उनको खर्चनी है खर्चने, तो वो बिल्कुल गारंटी के जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से प्लस गारंटी कर दीजिए। जी, तो मैं ऑडियंस पे फाइनल एक पोल के लिए आता हूं। मुझे बताइए कि ये जीएसटी जो नए प्रधानमंत्री आएंगे वो कर पाएंगे या नहीं। आपको कितना कॉन्फिडेंस है? जिनको कॉन्फिडेंस है हाँ हाथ हटाएं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, 50% जो आ गया है। तो प्रधानमंत्री जी, ये आपको बहुत ही फोकस करके करना पड़ेगा। ब्रेक में जाने से पहले एक बार मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगा कि उन्होंने जो प्लेकार्ड लिखे हैं प्रधानमंत्री को अपने सुझाव, वो जरा प्लेकार्ड उठा लें, ऊपर कर लें, और इनमें अपने सुझाव जो इन्होंने लिखे हैं, मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा कि आप हमारे #TellTheNextPM पे जाइए, अपने सुझाव वहां पे भेजिए और उनको भी शायद हम शामिल कर लें। कभी तो आएगी वो सुबह, कभी तो आएगी वो सुबह आएगी। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारा फोकस का विषय है टैक्स रिफॉर्म, उसकी कॉम्प्लिकेशन को कैसे कम किया जाए। हमने काफी सुझाव जो है अभी तक प्रधानमंत्री के लिए बनाए हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, और ये है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। हम कह रहे हैं कि आज कई बार आपने कंट्रोवर्सी में भी सुना होगा कि टैक्स अथॉरिटीज ने फोन टैप करे हैं लोगों के। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह की लेवल की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो पावर रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, कोई लोअर लेवल पे उसको यूज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको अपनी टैक्स की प्रणाली को सुधारना है, स्क्रूटनी को सुधारना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। सिंह साहब हमारे साथ हैं, जो चेयरमैन रह चुके हैं सीबीडीटी के। ये सुझाव कैसा है सिंह साहब? जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो तो अभी भी टेक्नोलॉजी के साथ ही होती है। कंप्यूटर एडेड केसेस आ जाते हैं जिससे हम इसको ऑडिट करते हैं। वो आईटीओ उनको बुलाता है, असेसिंग ऑफिसर बुला के उनकी डिटेल्स लेते हैं। बट ये जो जैसे आप कहते हैं फोन टैपिंग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये तो अभी ये होम सेक्रेटरी के पास है, आप कहते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास आना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है बात। हम कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में तो होम सेक्रेटरी के पास जाता है, टैक्स केसेस में के लिए तो रेवेन्यू सेक्रेटरी के लिए आना चाहिए। लॉ वैसे ही चेंज हो सकता है। पर एक और बात है कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास जो सर्च एंड सीजर का पावर, ये जैसे अभी है वैसे ही रहना चाहिए जी। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो डीजी जो इन्वेस्टिगेशन है उन्हीं के पास रहना चाहिए जी। वो जो वारंट्स इशू करते हैं सर्च एंड सीजर का, वो तो वैसे ही रहना चाहिए जी। और आप देखते हैं भी जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, जो सर्चेज हुई हैं अभी थोड़ी कम हो गई है। हम वो ऑल इंडिया इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की इस्तेमाल करके लोगों को नोटिस देते हैं,
उनसे क्वेश्चन पूछते हैं इन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो सब जारी है जी और हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। धीरज, आपका सुझाव इसमें? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ सिंह साहब से। वही है कि कभी कभी लगता है आम आदमी को, जो आम टैक्स पेयर है, कि जो टैक्स ब्यूरोक्रेसी है वो हैरेसमेंट वैल्यू उनका काफी होता है कि आपके टैक्स रिटर्न खोलते हैं, कई सवाल पूछते हैं। तो उसको कम करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, परमिशन हायर लेवल से ली जाए, तो फिर वो जो डिस्क्रिशन है सिस्टम में वो कम होगा, वो कम हो जाता है। और उस सबके लिए बेहतर है। जी, अब मैं पॉइंट नंबर 9 पे आता हूं, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। हमारे देश में और कुछ एस्टिमेट्स हैं कि 3.5 से 4 लाख, 3.5 लाख केसेस हैं पुराने जो है अटके हुए हैं हमारे कोर्ट्स में, और जो अमाउंट उसके साथ अटका हुआ है उसका भी कोई जो एस्टिमेट है 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जो अटका हुआ है। हम कह रहे हैं कि ये अब जो लॉक जैम है, ये जो स्थिति एकदम आके रुक सी गई है, इसको अब तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब आप सरकार को ऐसे कीजिए कि कोर्ट्स जो कि वैसे ही इतने क्लॉग्ड हैं, उनको उनसे कई आइटम लेके कंसिलिएशन कीजिए, आर्बिट्रेशन कीजिए, सरकार इसमें लीड ले, 2 अपील से ज्यादा सरकार ना करे और सेटलमेंट पे अपना फोकस रखे, जिससे कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए अटका हुआ है ये कम से कम प्रोडक्टिव यूज में आना शुरू हो। तो हमारे पास लॉयर भी हैं। अनुराधा जी, आप बताएं, आपने तो इस सिस्टम अंदर से देखा है, क्योंकि टैक्स डिस्प्यूट्स में आप कईयों में आप अपीयर भी हुई होंगी। तो इसको किस तरह से अनक्लॉग किया जाए? मैं ये मानती हूँ कि ये जुडिशियल रिफॉर्म का इशू है जी। ये टैक्स अलग नहीं है, टैक्स इश्यूज अलग नहीं है, ये जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। बट ये जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है टैक्स ऑफिसर्स के एक सर्टेनिटी नहीं है लॉ में। सेकेंडली, टैक्स ऑफिसर्स के हाथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है जी। ये 2 चीजें जो हैं जो केसेस बढ़ा रही हैं जी, आपको वहां पे आप रिफॉर्म ला सकते हैं। अटैक करना। तो केतन, आपके सुझाव की ये जो जड़ है, इस जड़ को किस तरह से हम अटैक करें कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो? या जो अनुराधा जी ने बताया, मैं कंप्लीटली सहमत नहीं हूं। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म, लेकिन जो ऑन ग्राउंड पे सिचुएशन है, वो जो डिस्क्रेशन है वो बहुत बुरा है। सो ट्रांसफर प्राइसिंग में मानिए कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड 1.5% है और 70% ऑफ वर्ल्ड के जो केसेस है वो इंडिया में है। सो दैट इज वन। एंड उसके लिए जो ज्यादा डिस्क्रेशन दिया गया है, तो टैक्स ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनके केस अल्टीमेटली रिवर्स हो जाए तो इनके ऊपर कुछ एक्शन लेनी चाहिए, वही अकाउंटेबिलिटी आएगी। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो नए केसेस जो निकल रहे हैं उसके लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि पुराने केस को सॉल्व करेंगे लेकिन और 2000 5000 हर महीने में नए केस खड़े हो जाएंगे, तो उसका क्या? तो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करने के पहले कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म होना चाहिए कि अपने आप ऑफिसर ना पास करे। और तीसरा, कोई कंसेंट स्कीम जैसी बनानी चाहिए जिसके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, जैसे कि आप बताए जो कंसिलिएशन प्रोसेस है। ये 3 शायद यूज करने और जैसे हम देख रहे हैं कि जो नई रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी है, जैसे कि सेबी, वहां पे कंसेंट मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब कंपनी आती है, फाइनेंशियल पेनल्टी देती है और आगे बढ़ती। मैं मुकेश और सिंह साहब के पास आने से पहले आपके कुछ सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो एड्रेस कर पाएंगे आपके सवाल। जी हाँ, आप बताएं। जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं तो एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म को अगर हम ब्रॉडर करें तो काफी ज्यादा सर्टेनिटी आ सकती है, क्योंकि हम बैकवर्ड तो बात कर रहे हैं, जो टैक्स डिस्प्यूट अभी है, आगे के लिए भी सोचना ज्यादा जरूरी है। एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा आइडिया है। और कौन? जी, हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस कोड प्रपोज किया हुआ है 2-3 साल से, तो वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टैक्स लॉस का सिंप्लीफिकेशन। आई थिंक उसको हमें प्रायोरिटी पे लेके आना चाहिए और नेक्स्ट बजट में उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं सर जी, तो ये करप्शन के लिए एवेन्यू तो नहीं होगा? बिल्कुल जायज सवाल है आपका, तो ये एड्रेस करेंगे। चलिए मुकेश, अब आप बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हर टैक्स पेयर को भरोसा छोड़िए बिल्कुल शक की नजर से देखते हैं जी। ये एक एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो पर से ही वो गलत कुछ काम कर रहा है, वो पर से चोरी कर रहा है। राइट। 3.5 लाख केसेस जो आपने एक्सप्लेन किए हैं, उसमें से मैं आपको 2-3 स्टेटिस्टिक्स देना चाहूंगा जी। आधे से ज्यादा केसेस फर्स्ट लेवल पे अटके हुए हैं, कमिश्नर अपील्स पर। दूसरी 60% 70% केसेस में गवर्नमेंट लिटिगेंट है, 60 से 70%। हाँ,
तो ये हमको सोचना चाहिए कि एक तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है कि रिपीटेटिव अपील्स की जाए कि अगर टैक्स पेयर को रिलीफ मिल गया है फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर, तो क्यों नहीं मिलता है? गवर्नमेंट के पास टेक्निकल कमेटी है, बट वो टेक्निकल कमेटी फंक्शनल नहीं है कि इन चीजों पे अपील नहीं होनी चाहिए। पर मुकेश, कई बार ये भी हो जाता ना कि हम जैसे लोग मीडिया में, एक्टिविस्ट लोग बाहर, हाँ जी, क्योंकि वो जैसे आप बोल रहे हैं कीचड़ फेंकना बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है कि आपने सेटलमेंट कर लिया, आपने तो पैसा लिया। तो सीएजी और सीवीसी का डर तो रहा ही है ऑफिसर्स में जी। काफी सिविल सर्वेंट्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसी के कारण, लेकिन ये इसके लिए भी रिफॉर्म की जरूरत है जी। और मुझे ये लगता है कि हमारे कंट्री में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट में लॉ बन जाता है, उसके बाद लॉ सही है गलत है, ड्राफ्टिंग सही है नहीं है, कोई नहीं देखता है, वो सिर्फ कोर्ट ही देखती है जी। तो हर मेनी कंट्रीज में ये होती है कि इंटरप्रिटेटिव स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। राइट, हमारे कंट्री में वो प्रैक्टिस रही है। तो ये 3-4 है। आप में एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि ये जो सजेशन रहा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, ये एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 महीने की टाइम लिमिट है, आज 2-2.5 साल होते हैं एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी डिसीजन आती नहीं, वो भी इंटरनेशनल टैक्स के लिए। क्या ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करप्शन रेज करेगा? मुझे नहीं लगता है। अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, अगर आप सेटलमेंट कमीशन के लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स को ले आएंगे और इंडिपेंडेंस ले आएंगे बाहर के लोगों को ला करके, मुझे उसका डर नहीं है। सिंह साहब, आपने पूरा डिबेट यहाँ पे सुनी। हम कुछ आंकड़े भी आपके सामने आए कि 60 से 70% लिटिगेशन जो है, जो अटके हुए मामले हैं, वो तो सरकार कर रही है और 2-2, 3-3 अपील के बाद भी करती है सरकार। तो कैसे सरकार भी हमारी प्रोएक्टिव हो जाए, हर डिस्प्यूट का जो दूसरी तरफ बैठा है उसको चोर ना समझे, 2 बार अगर अपील सेटल होगी तो तीसरी बार मत कीजिए, तो क्यों करती है सरकार? ये जो कई इश्यूज हैं, जो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मोस्ट अपील्स मैटर जो डिस्प्यूट है वो ट्राइब्यूनल लेवल पे खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी ट्राइब्यूनल है जी। इसके बाद ओनली ऑन सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है जी। और उधर भी एक बार जो डिसीजन एक हाई कोर्ट का हो गया, दूसरे हाई कोर्ट का हो गया, तो एक टेक्निकल कमेटी बोर्ड में बैठनी चाहिए कि इसको हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, इसको फर्दर लिटिगेशन की जरूरत है कि नहीं। ये तो मुंबई वाले कुछ और कर रहे हैं, दिल्ली वाले कुछ और कर रहे हैं, इनको लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, इसको उधर ही सेटल करना चाहिए। एज फार ये जो करप्शन कहते हैं, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, ये तो हर एक लेवल में भी करप्शन हो सकता है, एट द फर्स्ट एप्लेट लेटर, सेकंड, थर्ड लेवल, तो कहीं तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, कहीं पे ट्रस्ट और कहीं तो करेज दिखाना पड़ेगा। मैं आखिरी पॉइंट पे आना चाहता हूं और सिंह साहब आपके पास आऊंगा सिर्फ इस पे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और ये है 10वां हमारा पॉइंट कि ये जो पावर ऑफ टैक्सेशन है, ये लोकल सिटीज को दे दीजिए कुछ टैक्सेस का, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है, जैसे कि रोड टैक्स है, कुछ प्रतिशत सिटी अपने लिए रखे और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको स्पेंड करे। इस जगह पे बिल्कुल सहमत हूं मैं, ये तो करना चाहिए। सिटीज को अपनी लाइफ ऑफ सिटीजन की इंप्रूव करनी है, एवरी सिटी रिक्वायर्स इट। राइट, इनके रोड्स, इनके सीवरेज सिस्टम, इनके लाइटिंग, रोड लाइटिंग, उनके टैक्सेशन के पावर्स तो देने ही चाहिए जी। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप तो खैर सब अर्बन सिटीजन हैं, क्या आप ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार होंगे अगर आपको लगे कि आप वो जो टैक्स आप दे रहे हैं एज प्रोफेशनल्स, एज व्हाटएवर, वो आपकी सिटी में डिप्लॉय होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा? क्या आप लोग 7.5% ज्यादा टैक्स देने को तैयार होंगे? 7.5% सब लोग देने को तैयार, ऑलमोस्ट 90%। टैक्सेशन का जो पावर है सब दिल्ली में है और ये ऑडियंस भी ज्यादातर दिल्ली की होगी, लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो मुंबई की ओर से देखें या चेन्नई की ओर से देखें तो काफी फर्क पड़ता है कि यहाँ का पैसा दिल्ली से नहीं डिसाइड हो रहा है, चेन्नई में ही डिसाइड हो रहा है या कलकत्ता में ही डिसाइड हो रहा है। इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत होगा और अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होगी सिटी का, बहुत होती है। और देखिए प्रधानमंत्री जी, हमने एक तो सुझाव भी दिया आपको कि लोकल टैक्सेस दीजिए, हमने आपको टैक्स रेट भी दे दिया कि 7.5% जो है ये ऑडियंस देने को तैयार है, तो आप वो भी उसको अमल कर सकते हैं। हमारे ये 10 पॉइंट है, हम आके आपको देंगे, इससे हमारी टैक्सेशन प्रणाली में बहुत सुधार हो सकता है। जाने से पहले एक बार ये 10 पॉइंट दोबारा देख लें।